Center, left, right? Yes, perfect. Right, Look center. center, Wait. left. So here. Okay? So here. Very easy. Right, center, left. Center देखिए. Thank you. Thank you. What is the one with the book? What do you want me to say? Very rolling? Yeah? Chandra, it's an honor and a pleasure to know you and know your journey through your book. I did it my way. Today is a grand launch in Mumbai. You've had a larger than life launch in Dubai itself a few days back. Tell us about your entire journey, about the book, about. We want to know more about you. Well, I've spoken a lot about myself, but today I'm so happy that you all, friends of you all are here, and I'll be able to tell you all about the book. This book was written, it took me about 4 years to write this book, and it's a labor of love, and it's not about I, me, myself, and what I have achieved or not. It's about the mistakes that a man makes in his life, and what are the cause and effects of these mistakes, and how it affects the people around you, like your wife, children, parents, friends, business associates, and how this has happened, and what are the effects of it, and how it affects so many people around you. And this is a very honest story about the mistakes that I've made in my life, and what has been the result of it. And I have faced the consequences of it in different manners. But basically, I can't undo what I did, but at least you realize, and I want this book is about for people to realize that before they take any impulsive decisions or emotional or immediate decisions, before you leap, please think about what you're doing and how it would affect all your near and dear ones. And I have made that mistakes not once, but maybe twice, thrice, 4 times in my life, and there are no excuses for that. And I have admitted to all my mistakes, and I have been trying to rectify them. So this is not about a glory book about myself and my achievements. We all write about it, but it's about all these things about me and how I'm trying to mend them, and so that these mistakes are not made by the future generation of what I have done. I mean, leave the success and leave the fame and everything else aside, which by God's grace I have got. But still inside you, there remains something that you have affected so many people. And this book is about that. And I hope you all read it and like it and learn from it. Thank you so much. This is the only book which just not talks about your journey, but about your journey in Bollywood, which is amazing. I mean, we've not seen a beautiful confluence like this ever. Your journey, talks about Vinod Mehra, talks about, so many Bollywood friends of yours, today Shatrughan Sinha, Anupam Kher, they all are going to be part of it. Yes, yes, yes. Yes. Tell us a little bit about it. My journey has been right through, and my Bollywood friends, I've dedicated the book to Mr. Sunil Dutt, and the foreword is written by Mr. Shatrughan Sinha, and I have here. Bilal, how are you, sir? Man behind the man. की कहानी बड़ी मजा. We want to know about that. आओ इधर आइए. नहीं आप आइए. आप आइए ना सामने. नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपको पहचान कराने की ज़रूरत नहीं है. हमारे बड़े अजीज़ दोस्त अनुपम जी आज अपना टाइम स्पेयर करके आए हैं मेरे लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम. सो राजन जी से मेरी मुलाकात 1983 में हुई थी, 82-83 में. ये महेश भट्ट साहब की बिल्डिंग के नीचे रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे. और जब भी मैं भट्ट साहब के यहाँ से स्ट्रगल करके आता था तो इनके घर पे खाना खाता था. तो आई वाज जस्ट ए स्ट्रगलिंग एक्टर, पर इनके यहाँ पर मुझे खाना,
इनके कंधे पर आँख में आंसू रोकना, कभी कभी ड्रिंक भी देते थे। फिर मुझे जब भट्ट साहब ने सारांश की शूटिंग से 10 दिन पहले निकाल दिया तो मैं इनके पास आकर बहुत काफ़ी मैंने रोया, श्राप व्राप दिया भट्ट साहब शराब को। आप दिया। But I'm always thankful to him for being kind to me at a time when life was very tough, and he's a kind man, and I did it my way। इनको बिल्कुल सूट करता है बिकॉज इन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है अपने दम पर जी है और अपने दम पर ही इन्होंने अभी तक, इस बात को 40-42 साल हो गए हैं, बट ही इज़ अ ग्रेट मैन। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर, And सो हैप्पी। he's a great man too. And Saransh was the beginning of his career in life, and he has done over 550 films since then. And he is an immense character in films. You've all seen it. But more than that, he's a great human being with a big heart. And we've been, I think, over 40 years friends. Yes, yes. And our journey has been really phenomenal. And I'm so happy and proud that he's here on my occasion today to Of launch course. my book. I have to go to Ahmedabad, but I cancelled that. I mean, I'm going there a little later. Good. और एक फोटो खिंचा मेरे। हाँ हाँ। तू मेरा कैमरा इधर मेरे सामने। Listen, Ann has spoken so fondly about Yeah. Rasa, about you, about the whole family. I did it my way. What do you have to say? Your fond memories about this? Lots of fond memories of my father and Mr. Rajan Lal, and I think it's really wonderful that he's been able to really pen down his entire life in this book. I'm very excited about it because I think I don't know a lot about his life except the time when he was with my father, and I'm looking forward to reading this book. Anything, any memory of both of them together that you have that you can share with us, or anything special? So I think the relationship between Rajan and my dad was very, very special. They were very good friends, but I think it was like a father and son relationship, which I learnt little later. And I remember Rajan always pampering my father. Every time he used to come and meet my father, he would get him a little gift, and that would really excite my father and have this big smile on his face, and he used to show off the gift, see what Rajan got for me. So I think it was a beautiful and a lovely relationship that they shared. Yeah. Thank you so much. Thank you. यहाँ से इधर सामने देखिए। लुक सेम का। No, we just revise also. Okay. मैम इधर देखिए। मैम वो ये मैं कैमरा। राजन जी, आपकी और रूप जी की कुछ memories राजन लाल जी के साथ which you would like to share? Yes, first of all, my heartiest congratulations to dearest Rajan Bhai, and we go back very long way, and of course music was the common factor which bind us together. And not only is he a great music lover, but a very sensitive person, and we immediately kind of bonded with him, and we've done so many shows with him,
we've performed in his house. In fact, his house was one of the first places where Roop Kumar ji performed, and consequently we performed in Dubai. And I think it's going to be a very, very interesting read. So all the best to him always. Thank you. सर यहाँ पर सर यहाँ पर सर इसके अंदर यस बस बस सर मैडम इधर देखिए सर इधर सामने देखिए सामने मुझे भी डायरेक्शन देनी पड़ रही लोग सेंटर सेंटर चलो खामोश खामोश सर एक खामोश मैडम इधर सामने देख रहे हैं इधर अनुष्का जी यहाँ पे मैडम इधर यहाँ पर देखिए मैम ये मैं कैमरा में देख रहा हूँ यहाँ पे मैंने मैम इधर देखिए ना थैंक यू आपके सिस्टर को बोले हाँ वो आ जाए तो मुझे बता देना ठीक है तो आप चले जाए अरे रोहित यहाँ पर सर वेट यहाँ पे सर यहाँ पे देखिए सर इधर देखिए नहीं कैमरे में देखिए सर इधर सामने कैमरे में देखिए दो बार इधर थैंक यू boys, thank you boys. See you soon. यहाँ पे मैम यहाँ पर इधर देखिए यहाँ पे मैम इधर सामने सेंटर देखिए सेंटर सेंटर together yeah इधर सामने सेंटर देखिए क्या कर रही हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हो? बोल रही हो? अरे वो शेखर सर वैसे ही दिखते हैं जितने 25 साल पहले से मैं जानती हूँ। ये सब भी तो वैसे ही नहीं उनमें से मुझे लगा था कि यहाँ पर उन दिनों टैलेंट ज़रूरी था, पर पता लगा कि यहाँ हेयर स्टाइल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टैलेंट से। आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम ड्रामा स्कूल, और ये तो आप बड़ी डिग्निफाइड सेक्सी बॉल्ड लुक देख रहे हैं, लेकिन जब आपके बाल निकलते हैं तो आप इधर आधे से इधर निकलते हैं। तो यहाँ पर मैं जिस भी ऑफिस में जाता था वो कहते थे कि टैलेंट तो ठीक है लेकिन हेयर स्टाइल नहीं है आपके पास। एट दैट टाइम आई कॉल्ड अप वन डे मिस्टर महेश भट्ट, एंड वेरी स्ट्रेंजली ही सेड हाँ आ जाओ, कल आ जाओ। दैट वॉज वेरी रेयर थिंग टू बी कॉल्ड एज अ स्ट्रगलिंग एक्टर। तो मैं उनसे मिला उनके पाली हिल वाले फ्लैट पे। जब मैं वहाँ से नीचे आया तो एक शख्स ऐसे ही दिखते थे तब भी, आज से कम 42 साल पहले, और उन्होंने मुझसे कहा कि चाय पियोगे। आई वॉज वेरी टच्ड दैट ही फेल्ट दैट I was compromising with my dignity because I was looking for work and I had no place to stay, and he was very kind to me. And that's what those days one needed, kindness. Because in the city, when you are a drama school student and इस भीड़ में आप अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं, तो कोई आदमी आपसे काइंडली बोले कि आप चाय पीजिए, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जब भी मैं भट्ट साहब के यहाँ जाता था तो वो मुझे ज्ञान देते थे, अच्छा ज्ञान, नॉट लाइक में, एंड ये मुझे खाना देते थे, बहुत इम्पॉर्टेंट था। आई रिमेंबर हिज अंडे की भुर्जी, ब्रेड एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। एंड देन नॉट मेनी पीपल नो दैट आई वॉज थ्रोन आउट ऑफ द फिल्म जस्ट 10 days बिफोर सारांश शूटिंग वॉज टू स्टार्ट। एंड मेरी जगह हरि भाई को ले रहे थे,
तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस शहर में नहीं रहूँगा। मैंने अपना सामान पैक किया और मैं बॉम्बे सेंट्रल जाने लगा। फिर मुझे लगा अब तो मुझे भट्ट साहब से कुछ लेना देना नहीं है, अब मैं जाकर उनको बता सकता हूँ मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ। फिर मैं उनकी लिफ्ट काम नहीं कर रही थी और ये शायद नीचे थे नहीं, तो मैं उनके घर गया। मैंने उनसे कहा कि आप सत्य पे फिल्म बना रहे हैं, आप में सत्य नहीं है। आपने मुझे 6 महीने तक मैं इस फिल्म की रिहर्सल करता रहा हूँ और अब आप 10 दिन पहले मुझे निकाल रहे हैं। जब गुस्सा बहुत क्लाइमैक्स पे होता है तो यू वांट टू एंड इट विद अ गुड लाइन। तो मुझे कुछ लाइन सूझ नहीं रही थी, तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आपको श्राप देता हूँ। और ये बोलते हुए मैं बहुत रो भी रहा था, परेशान भी था। और नीचे फिर मुझे ये मिले तो मैंने कहा मुझे फिल्म से निकाल दिया, मैं शिमला जा रहा हूँ वापस। तो उन्होंने कहा वो कुछ खा लो। कहते मेरे यहीं पर डिसाइड हुआ था संजीव भाई को लेना है। बट what I want to say actually about him, that when you're looking for a destination, you look for a tree under whose shade you want to sit down. So Rajan was the tree which gave me shade in those days, and that's what is very important. Because मंजिल तो मेरी फिल्मों में काम करना था, लेकिन इनकी जब इनका प्यार, जो इनका मुझे काइंडनेस दिखी, वो अभी भी बरकरार है। मुझे लगता है कि कुछ रिश्ते टेप रिकॉर्डर की तरह होते हैं, पॉज बटन की तरह। आप पॉज हटाओ तो वहीं से शुरू होते हैं जहाँ से आपने छोड़े थे। थैंक यू राजन फॉर बीइंग सो काइंड एंड गुड लक। एंड आई सॉ माइन एंड किरण's पिक्चर, it reminded me of so many, gave me so many memories. And the biggest tribute paid to you today is Shatruji coming here exactly on time. That means he loves you so much, and that should be the headline of every event that you are doing from today, tomorrow onwards. Thank you so much. I have to take a flight. आप सबका स्वागत है राजन के बिहाफ पे। और राजन ने पुराना क्लिप दिखा दिया तो अब नए डायलॉग याद करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे बेहद खुशी है और एक बहुत मुबारक दिन है कि जिस माँ ने आपको जन्म दिया, आज उसके बर्थडे पे आपकी किताब लॉन्च हो रही है। इससे बड़ा आशीर्वाद जो है शायद ही किसी को मिले। तो आप भाग्यशाली हैं कि आपकी माँ का आशीर्वाद, आपके बेस्ट फ्रेंड्स आज सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं इसलिए कि आपकी ये जो किताब, जिसके लिए आप इतने पैशनेटली इतने दिनों से लगे हुए हैं, उसका बॉम्बे में रिलीज़ हो रहा है। अब आप बॉम्बे में नहीं रहते हैं, लेकिन आपका दिल कहीं यहीं घूमता रहता है आसपास। सो खुशी है कि आज ये सब लोग यहाँ पर हैं और इस किताब का लॉन्च है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार कहूँगा कि यू हैव फॉलोड योर पैशन ऑल योर लाइफ एंड यू हैव डन इट योर वे, रॉन्ग और राइट, who decides? So, but glad that you did things which you wanted to do, and I'm glad to be your friend. Thank you, Rajan. बहुत ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ, मैं मौके की नज़ाकत को समझता हुआ शुरुआत करना चाहूँगा इन पंक्तियों से कि लम्हे लम्हे की सियासत पर नज़र रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। लम्हे लम्हे की सियासत पे नज़र रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। इतने नादा भी नहीं हम कि भटक कर रह जाएं, कोई मंजिल ना सही राह गुजर रखते हैं। मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। इस कदर हमसे तगाफुल भी ना बरतो साहब, इस कदर हमसे तगाफुल भी ना बरतो साहब, हम भी कुछ अपनी दुआओं में असर रखते हैं। ये मैं राजन लाल जी की तरफ से कह रहा था, जिनकी माता जी की आज 130वीं वर्षगांठ है। उस दिन शुभारंभ हुआ है मुंबई में पुस्तक विमोचन का, इनकी बायोग्राफी का, इनकी आत्मकथा का, और आशीर्वाद हासिल किया है इसमें हमारे बहुत परम आदरणीय महंत जी, हमारे पुजारी जी, सलोखे जी का। और ये मैंने कहा था कि राजन लाल की तरफ से कि हम भी अपनी दुआओं में कुछ असर रखते हैं। दुआओं का असर देखिए
कितने रंगीन वातावरण है, कितने रंगीन लोग हैं, रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, सारे भूले बिसरे गीत, सारे पुराने दोस्त आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि राजन ने उन पंक्तियों को चरितार्थ कर दिया है, वंस ए फ्रेंड ऑलवेज ए फ्रेंड। इनके 40-45 साल या 30-35 साल, अब हम लोग अपने देश के महान कलाकार आइकॉनिक स्टार जितेंद्र को देखकर, या बगल में राकेश रोशन जो है हमेशा चर्चा में रहते हैं, और आज इनकी फिल्म नेटफ्लिक्स जो आई है, नेटफ्लिक्स पे रोशन, और जिस पे कंट्रीब्यूट किया, सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी ने दिया है तो शशि रंजन। ये लोग बैठे हैं और इनका ख्याल रखते हुए मैं कहूँगा कि अपनी दोस्ती की सीमा अगर आप 20-25 साल कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 40-50 साल आप कह रहे हैं तो थोड़ी इमेज खराब होने की संभावना बनी रहती है। बहरहाल आपस की बात है ये। राजन लाल एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान हैं, दोस्त हैं। इनके बारे में सब ने वो बातें की हैं तो मैं भी रेपिटेटिव नहीं होना चाहूँगा, दोहराना नहीं चाहूँगा। मुझे याद आ रहा है जिन्होंने जिक्र किया सुनील दत्त साहब का, जो मेरे बड़े भाई समान थे, और मैंने उनको, ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने इनको राजन लाल जी से मिलाया था। सिर्फ इनसे ही नहीं मिलाया था, उस वक्त शशि रंजन, हम लोग और राजन लाल, हम राजन लाल के घर पे बैठा करते थे। कुछ और घड़ियां भी हैं, जैसे मुंबई में राइट्स हुए, राइट्स में और कहीं जाने का नहीं था, हम ही चंद दिलेर लोग थे जो आके शाम को मुंबई के दंगा पीड़ित क्षेत्रों को पार करते हुए हम लोग आते थे, राजन लाल के घर बैठते थे, विचार विमर्श करते थे। और उसके साथ ही साथ वो जो संकट की घड़ी जब दत्त साहब पे आई, और खासकर हमारा आपका हम सबों का लाडला, हालांकि आजकल लाडला कहने से मतलब बदल जाता है, लेकिन लाडला, और मैं मन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं मन की बात पे पेटेंट राइट किसी और का है, मैं इस वक्त दिल की बात कर रहा हूं। और दिल की बात यह है कि हम लोग दिल से बहुत ही फिक्रमंद थे, बहुत ही कोशिशमंद थे कि कैसे इतना प्यारा इंसान, इतना अच्छा लड़का, सुनील दत्त का चश्मे चिराग, हम सबों के परिवार का बच्चा संजय दत्त को कैसे बाहर निकाला जाए, या कैसे वो बाहर आए, कैसे हम लोग उनके लिए कुछ कर सकें। हमारा सौभाग्य था कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र के एकदम शेर कहें या फादर फिगर कहें या गॉड फादर कहें, बाला साहब ठाकरे का हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद था, और हमने इन लोगों को बाला साहब ठाकरे से ही मिलवाया था। और ये भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बाला साहब ठाकरे का बहुत बड़ा योगदान था संजय दत्त के मामले में, उसके आने के मामले में, उसकी राहत के मामले में, सहूलियतों के मामले में, या बाहर निकलने के मामले में। उन्होंने, हम सब ने मिलके, और ख़ासकर उनके नेतृत्व में बहुत कुछ करने का हम लोग को सौभाग्य मिला। आज अगर संजय दत्त यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हम लोग जिस दिन वो जेल से बाहर आए उस दिन भी हम लोग साथ थे। जेल से बाहर निकलकर संजय दत्त हमारे घर आए थे, हमारे घर आने के बाद फिर पूजा, कहीं मंदिर गए थे, सिद्धिविनायक गए, फिर हमारे घर आए। हमारे घर से हम लोग सीधा राजन लाल जी के यहाँ आए थे। बाद में बहुत देर तक बैठे रहे उस दिन, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती रहीं, मुबारकबाद देते रहे, बहुत बहुत उसको प्यार देते रहे। लेकिन बस कहानी वहीं पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आया कि अब उसके बाद कई बार हमने संजय दत्त को कोशिश की है, बड़ा प्यारा लड़का है, बड़ा अच्छा इंसान है, लेकिन कई बार हमने ढूंढने की, खासकर राजन लाल जी ने तो बहुत ही कोशिश की है, हमारे सामने भी कोशिश की है, हमारे ज़रिए भी कोशिश की है, लेकिन दत्त साहब का चश्मे चिराग अभी हमसे अगर ना मिला है, नहीं मिला है, तो उसके ऊपर एक टाइटल लग चुका है, ढूंढते रह जाओगे। वो ढूंढते रह जाओगे नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यारा नहीं है, न्यारा नहीं, बहुत अच्छा, उसकी अपनी कुछ वजह होगी, या कुछ परेशानियां होंगी, या व्यस्तता होगी। बहरहाल अब किताब पे आ जाऊं, मैंने कहा था ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तो मैं किताब पे आ जाऊं। और किताब में कहूँगा कि इन्होंने आत्मकथा लिखी है, वो बायोग्राफी। उसमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आप में से कल कोई भी बायोग्राफी लिखना चाहे या सामने आए तो 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी, साहस, करेज, हौसला,
कि हाँ लिखना है, कहना है। दूसरी क्वालिटी होती है कि वो काबिलियत आपके अंदर, वो क्षमता होनी चाहिए, वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने ग्रे साइड को ये बाहर लेकर आ सकें। ब्लैक एंड व्हाइट में तो सब जो करते हैं वो स्तुति गान होती है, कि आपके अंदर वो ग्रे साइड है उसको भी लाएं, ताकि नंबर 3 आपकी किताब इंस्पिरेशनल हो, मोटिवेशन हो उससे, खासकर यंगर जनरेशन का, कि देखो अच्छाइयाँ तो हैं, लेकिन अच्छाइयों के साथ साथ बहुत सारी खामियां, कमियां या बुराइयां भी हैं जो आपको इस किताब में देखने को मिलेंगी। जिन लोगों ने मुझसे कहा है, शशि रंजन जी तो खैर बहुत ही, ये तो इनके फैमिली फ्रेंड ही रहे हम लोगों की तरह, और खासकर हमसे ज़्यादा। ये राकेश रोशन ने बता रहे थे, दुबई होकर आए, कि शायद रास्ते में पढ़ा होगा इन लोगों ने, आता किताब पढ़ी होगी, और बहुत ही तारीफ कर रहे थे कि साहब बहुत गट्सी आदमी है, आई डिड इट माई वे। ये पढ़ना आसान है, कहना और करना बड़ा मुश्किल है। करना भी हो सकता है आसान हो, मन लगता है, करना आसान इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बड़े भाई समान दोस्त हम सबों के धर्मेंद्र जी ने हमें सिखाया था, जब मैं स्ट्रगल करके नया नया स्टार बनने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने सिखाया था कि देखो, हर सफल इंसान के पीछे किसी न किसी औरत का, स्त्री का हाथ होता है। यानी कोई भी सक्सेसफुल आदमी होता है, उसके पीछे किसी न किसी औरत का, अच्छी औरत का हाथ होता है। बाद में मैंने महसूस किया राजन लाल से मिलने के बाद कि किसी कामयाब इंसान के फेल या फ्लॉप होने के पीछे भी किसी न किसी औरत का हाथ पाया जाता है। इनके साथ ये तो नहीं कह सकता हूं इनकी किसी औरत का, ये तो कई औरतों के मामले में मशहूर हैं या बदनाम हैं। अब ग्रे साइड भी तो बोलना पड़ेगा ना, तो मशहूर हैं या बदनाम हैं इन्होंने, बट ही हैड द करेज, इन्होंने महसूस किया, उसको पेन डाउन किया, एंड ये हाईली 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 अप्रिशिएटेड कि इतनी हिम्मत की। यानी वन वुमन मैन एट ए टाइम, ये धर्म जी ने मुझे सिखाया था। वह इसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए कोई नजर आया तो हमारे दोस्त राजन लाल, जो मल्टीटास्किंग में बिलीव करने लगे और मल्टी वुमन एट ए टाइम हो गई है। गजब का भाई इनका मादा है, गजब का कैरेक्टर है। आई डिड इट माई वे, क्या नहीं किया। आज मैंने तीसरे पॉइंट पे बात करूं तो तीसरा पॉइंट जो है कि मोटिवेशनल होना चाहिए, इंकरेजिंग होना चाहिए, इंस्पिरेशनल होना चाहिए। वन मस्ट लर्न इन लाइफ ऑलवेज, स्पेशली द यंगर जनरेशन, कि व्हाट टू डू, बट साथ साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है व्हाट नॉट टू डू। आपको वो सारी बातें इसमें मिलेंगी, ये राजन लाल की आई डिड इट माई वे में। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस को इन्होंने, जर्नी को इन्होंने जिस तरह से पेन डाउन किया है, ये हमारी जिस तरह से लिखा और लिखवाया गया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है इनको। जिन लोगों ने सीखा व्हाट टू डू और जिन लोगों ने सीखा व्हाट नॉट टू डू, उनको वो सीख रहे हैं व्हाट नॉट टू डू, उनको याद रखना चाहिए कि आई डिड इट माई वे, वह इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। आज तक ढंग से इनकी शादी नहीं हो सकी, ढंग से, वो इसलिए, हाँ, जहां हम लोग को लगता है, और शशि रंजन जी हमेशा कहते हैं कि राजन लाल की ये प्रॉब्लम नहीं रही कि किससे शादी करें, इनकी प्रॉब्लम ये रही कि किससे शादी ना करें। ये कंफ्यूजन की कहानी है, एक क्लैश की कहानी है, ये डिटर्मिनेशन की कहानी है, ये संघर्ष की कहानी है, ये सक्सेस की कहानी है, ये रिपेंटेंस की कहानी है, ये अचीवमेंट की कहानी है कि एक आदमी, आज राजन लाल को आप सिर्फ राजन लाल के नाम से जानते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि राजन लाल क्या है, कहां का है, नेशनलिटी क्या है, 99% लोगों को नहीं पता होगा। जात क्या है, किसी को शायद नहीं पता हो। मजहब क्या है,
यहाँ को मानते हैं कि इसराइल को मानते हैं कि इस्लाम को मानते हैं कि किस धर्म को मानते हैं, किस मजहब को मानते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। हाँ, इतना जरूर सब कोई जानते हैं और मानते हैं कि साईं बाबा को बहुत मानते हैं और साईं बाबा इनको बहुत ही आशीर्वाद देते हैं हमेशा। ये इनके बारे में बस सब कोई जानता है। राजन लाल, राजन लाल कह दीजिए तो कंप्लीट है, आगे पीछे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब मैं देश का एक रिकॉर्ड कायम करता हुआ पहला हेल्थ मिनिस्टर बना था, कैबिनेट मिनिस्टर बना था, तो हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, इन्हीं के बच्चों की तरह। तो कई बार अखबार में आता था कि हेल्थ मिनिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा, कई बार नहीं आता था, सिर्फ आता शत्रुघ्न सिन्हा इनॉग्रेटेड दिस। तो किसी ने वो चिढ़ते थे कि अरे आपके नाम के आगे हेल्थ मिनिस्टर नहीं लिखा। तब हमारे कुछ लोगों ने समझाया बच्चों को कि देखो, कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं उनके बारे में लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपने शत्रुघ्न सिन्हा कह दिया, इसका माने शत्रुघ्न सिन्हा है। आज उससे ज्यादा मैं समझता हूं, जानता हूं और मानता हूं कि राजन लाल हैं। राजन लाल के नाम के आगे पीछे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सबके हैं, सर्वजन प्रिय हैं और सर्वदल प्रिय हैं। पॉलिटिक्स में इनकी कोई रुचि नहीं है, बट ही हैज बीन अ ग्रेट ऑब्जर्वर एंड अ ग्रेट सपोर्टर। लेकिन दूर से राजन लाल की पर्सनालिटी के बारे में ये भी कहा सकता है कि जितने दूर दुबई में है अभी, मगर उतने ही पास, दिल के बहुत करीब हैं। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, शुभाशीष देता हूँ। गॉड ब्लेस यू राजन लाल, लॉन्ग लिव राजन लाल। और इनके परिवार के प्रति हम अपनी पूरी संवेदना, पूरा प्यार उनको परिवार को अर्पित करते हैं और माँ को, परम आदरणीय माता जी को पुनः प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। तो अब मौका क्या है, मुझे तो पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, लेकिन इसने अंग्रेजी में किताब लिखी है राजन लाल ने। आई नीड समबडी एल्स टू ट्रांसलेट इट ऑल्सो। एंड अच्छे की जो मोमेंट्स है मिली है मुझे टेलीफोन पे, फ़ोन के ऊपर जो आपके बाइट्स आते रहे हैं, इंटरव्यूज आती रही हैं, अमेजिंग। एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ योर्स। जिन लोगों को मालूम है वो तो एंजॉय करेंगे ही, जिनको नहीं मालूम है वो भी करेंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट राजन, एंड आई एम प्राउड टू बी योर फ्रेंड। आई डोंट नो व्हाट अबाउट यू, प्राउड टू मी और नॉट, है ठीक है ना? तो आई एम ग्लैड आई कुड मेक इट। माई वाइफ इज इन पंचगनी, आई थिंक शी टोल्ड यू, अदरवाइज शिकायत नहीं करना। तो मैं दुबई में जब भी जाता हूँ, राजन की यहाँ रहता हूँ, ये साला बढ़ता खिला खिला के मेरे को हॉस्पिटल भिजवा देता है। थैंक यू वेरी मच। ओके, I wish you a book. I did it my way. All the best. And I'm very happy to be here. Thank you. Dudu, would you like to say a few words? Good evening, everybody, and good evening, the handsome man. I still haven't read your book, but I'm going to read it very soon. And as you all watch the video, I would like to do some mistakes what you have done and be like you when I grow up like you. But I'll tell you one thing, his heart is like an octopus which has tentacles full of love. And I love him for that. Thank you. Thank you, Rajan. Friends, after I could make Jitu ji say something and Gudu ji say something, I thank Shashi for saying so much about me and knowing me. We've known each other very well. And Shatruji for speaking so highly about me, one at a time. And Goli, you have been my friend for the last, I think, 40, 50 years. And we've had some fun times together, which I can't talk about. But we've had some fun times together. And most of all, I'd like to thank some of my old friends who've been with me. I think my oldest friend I'd like to start with is my friend from the first standard, my friends. From the first standard in school is here with me today, Mr. Stephen Pinto. Please give him a hand and please take a bow. Stephen,
Stephen has been my study buddy since first standard. He has been, of course, chairman of Citibank, chairman of Mashrak and all the other things, but that beside the point. He's been a friend. And he's been a friend in need. And when I started my business in Dubai, he was the chairman of Mashrak Bank. And he gave me a credit line without any leverage or without any collateral or mortgages. And I thank you for that, Stephen, for that help that you gave me when I started my life in Dubai. I honestly thank you. Asha, thank you so much for coming. My next friend whom I would like to thank is my old friend, Mr. Kiran Kapoor, who's from Kapoor Lamps. Kapoor, Kiran, would you like to please take a stand and bow? Kiran has flown in specially from Delhi today with his wife Veena. And Kiran and me, we have a journey together where we started Kapoor Lamps in Bombay at Kala Ghoda and Linking Road with my own mentor and friend, our mentor, Mr. Ram Batra. And Kiran is here today with me, and thank you, Kiran and Veena, for coming so much and blessing us. And we've had a long journey together, and I'm so happy and blessed that you've been with me. I'd like to, another friend whom I can't stay without is my old friend, 50 years, Mr. Dinesh Nair. Mr. Dinesh Nair, please stand up and give him a round of applause. Mr. Dinesh Nair has been a 50-year-old friend with me, a guide, mentor, and so has Madhu. Madhu, thank you so much for everything. And he is I mean, for the last 3 days I've been here, 4 days. He has personally supervised everything that you see here. He's come here, stood, where will this be, where will that be? I mean, he's such a perfectionist and he's taking care of us like home. And Dinesh has been a friend besides in the garment business. He's the first man who gave me 1 crore of rupees to buy my building without any reason. He just called his accountant and he says, give me 1 crore, Rajan, go and buy the building, my ITL house which I bought. I can never forget those gestures, you know. You've got to remember those people who've helped you during your journey. And Dinesh, thank you so much. And if it wasn't for you today, I wouldn't be standing here. I honestly agree. Pray for that. Thank you.